Secretary General, International Buddhist Confederation. It's our great privilege to extend a hearty welcome to our honorable ministers gracing the dais. Proud moments, ladies and gentlemen, as we also welcome illustrious Sangha leaders, Dharma practitioners, scholars, ambassadors from across the globe who have so benevolently congregated here to discuss modern-day global challenges and help in finding solutions through the teachings and principles of Buddha Dhamma. GVS 2023 is a historical summit as we have the blessed participation of supreme heads and other senior-most members of the Holy Sangha and illustrious scholars from 30 countries from all parts of the globe. आज के इस परम पावन पर्व की दिव्यता में भव्यता में चांद लगाने के लिए देश विदेश से यहाँ पधारे हम हमारे हर मेहमान का संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आजादी का अमृतकाल G20 के विश्व मंच से अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम का संदेश देती लोकतंत्र की जननी भारत और इस विशालतम लोकतंत्र के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति, दुनिया के 30 देशों से पधारे परम आदरणीय धर्माचार्यों का अनुपम सानिध्य, हमारा सौभाग्य कि आज हम इन अलौकिक पलों के साक्षी हैं। आइए मिलकर एक बार पुनः करतल ध्वनि से अभिवादन करें। प्लीज जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर। इस प्रांगण में विराजमान सभी गणमान्य विभूतियों का, महात्मा बुद्ध के विश्व कल्याण के संदेश का अलख जगाते सभी विद्वानों का अभिनंदन करें इन अद्भुत पलों का, जहां बौद्धमयी संस्कृति की अद्भुत छटा बिखरी है। Thank you, ladies and gentlemen. International Buddhist Confederation is an apex body under the aegis of Ministry of Culture, Government of India. It provides a global platform for preserving, propagating, and promoting shared Buddhist values and tradition. We are indeed honored to have Venerable Dr. Dhammapaya, Secretary General IBC amidst us. May I request you, sir, for your blessings with opening invocation. Venerable Dr. Dhammapaya, please. Suprabhatam Sabbham Namami. Andabhuto ayang loko tanukhitta vipassati sakunto jhalamuttava appo saghaya gacchati. When there is darkness, we need light. The infinite light of enlightenment, Amitabha. Amitabha. And wisdom, Jnana Chakku Arpanya, to dispel the darkness of violence, hatred, animosity, ill will, terrorism, war, and ignorance from the face of the world. May the light of boundless compassion emanate from the heart of all of us and permeate the whole world with joy, peace, harmony, and a feeling of mutual trust as we all belong to the same human family, having a shared Mother Earth and a common future. May the Global Buddhist Summit be a grand success, and we, as followers of the Buddha and responsible citizens of the world, protect the nature, environment, and the biodiversity on this planet Earth. Collective wisdom and united voice is the motto of IBC, International Buddhist Confederation. Let's join hands and pledge to act collectively to contribute our bit in making the world a peaceful place to live in, with abundance of all good and positive things. Chirang tithatu lokasming samma sambuddha sasanang tasming sagarava nityang hantu sabbepi panino. May the teachings of the Enlightened One last long in the world. May all beings pay their due respect to it always. May the pure and universal Dhamma, Dharma,
last forever and spread everywhere in the world for the welfare, benefit, and happiness of all. Bhavatu Sabbha Mangalam. Thank you, Venerable Dr. Thamapia, for your blessings through the most auspicious inaugural invocation. Venerable Dr. Thamapia is also the founder of Thamma Deepa Foundation and Secretary General of the Northeast India Buddhist Sangha Council. He is also the founder chairman of Bahujan Hitai Education Trust, Tripura. ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 के ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी की मंगलमय उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं. मैं नाउ रिक्वेस्ट Shri G. Kishan Reddy, Honorable Minister for Culture and Tourism, to welcome our Honorable Prime Minister by presenting a khadk. We'll also request the Honorable Prime Minister to accept a memento. The khadk, ladies and gentlemen, a traditional scarf in Bauddha Dharma, symbol of reverence and gratitude. And memento is a replica of Nalanda's seal that reminds us of our glorious history and rich cultural heritage. Nalanda, as we all know, is a temple of knowledge, one of the greatest seats of Dhamma for nearly 700 years. May now request Shri G. Kishan Reddy, Honorable Minister for Culture and Tourism, for the welcome address, please. क्या उस पर रोक लगेगी? बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. इस 2 दिवसीय फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में दुनिया भर से आए सभी बौद्ध गुरुओं को और सभी बुद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मैं सादर नमन करता हूं. मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य किरण रिजवी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री मीनाक्षी लेखी जी और eminent scholars of international Sangha leaders, venerable monks, prominent Buddhist followers, बौद्ध धर्म के सभी प्रचारक, peoples from Indian Sangha communities, respected ambassadors and diplomats, सभी अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों और यहाँ उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं भारत सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूं. आज ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा होना हम सब के लिए गर्व की बात है. इस फर्स्ट ग्लोबल समिट का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है. इस दो दिवसीय फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का थीम रेस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस रखा गया है. इस ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में दुनिया के अलग अलग 30 देशों से मोर देन 30 कंट्रीज, लगभग 170 इंटरनेशनल डेलीगेट्स हिस्सा ले रही हैं. साथ ही विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स इस समिट में भाग ले रही हैं. और इस 2 दिवसीय ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में पीस, एनवायरनमेंट, मोरालिटी, हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी. इस 2 दिवसीय समिट में हम 5 अलग अलग एग्जीबिशंस का भी प्रदर्शन कर रही हैं. इस समिट में बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ हमें कई महान दार्शनिक और प्रमुख लोगों का मार्गदर्शन इस 2 दिन में मिलने वाला है. ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इनिशिएटिव है.
ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में हमारे सांस्कृतिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी मजबूत करने में मदद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के कई मंचों से अलग अलग समय पर इस बात को कहा कि दुनिया के प्रमुख चुनौतियों का समाधान बौद्ध जीवन दर्शन से ही हो सकता है। ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट उस दिशा में एक सफल प्रयास है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत ने बौद्ध दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए अनेक अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं। हमने बुद्ध उत्सवों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय स्तर पर हर साल उत्सव मनाते हैं, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा हो या फिर आषाढ़ पूर्णिमा हो। भारत सरकार दुनिया भर से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए उत्तर प्रदेश में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाए। भारत सरकार बुद्ध भगवान की जयंती पर लुम्बिनी जो नेपाल में है इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। इस इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट का निर्माण के लिए भूमि पूजन श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों के द्वारा पिछले साल संपन्न हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स वेरियस बुद्धिस्ट बोथ और विद इन कंट्री एंड इंटरनेशनल। वी आर डेवलपिंग ऑल दी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। भारत सरकार ने बुद्ध सर्किट के नाम पर सभी भगवान बुद्ध के जो प्रमुख तीर्थ स्थान है उसमें दर्शन करने के लिए भारत गौरव यात्रा के स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं। इसके अलावा देश में 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट एजुकेशन देने में अपना भूमिका निभा रही हैं और अलग अलग बुद्धिस्ट संस्थाओं का भारत सरकार के द्वारा हर तरह प्रोत्साहित कर रही हैं। अंत में एक बार फिर दुनिया से सबसे बड़े आबादी और सबसे बड़े बजट तंत्र के वाले देश के 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं आए हुए सभी प्रतिनिधियों का, सभी बौद्ध गुरुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। वी प्रे टू यू टू ब्लेस द अर्थ, वी प्रे टू यू ब्लेस इंडिया, वी प्रे टू यू bless the people, we pray to you bless our Prime Minister Narendra Modi ji. India is a birthplace of Buddhism, India is the land of Buddhism. Jai Hind, thank you. Thank you, sir. Ministry of Culture, Government of India has been indomitably committed towards preservation, conservation of Buddhist heritage and traditions, along with promotion of its practices. May now request Sri Kiran Rijiju, Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, for his address, please. Sri Kiran Rijiju ji. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Union Ministers present on the occasion, Sri G. Kishan Reddy ji, Arjun Ram Meghwal ji, Srimati Meenakshi Lekhi ji, the Secretary General of the International Buddhist Confederation, Dr. Dhamma ji, the most venerable members of the Mahasangha, the senior political leaders present here, members of the diplomatic community, dignitaries from different countries, erudite Buddhist scholars, Dhamma practitioners, media persons, ladies and gentlemen. Greetings and Namami to all. Welcome to the Global Buddhist Summit. I'm deeply honored to have this opportunity to participate at the Global Buddhist Summit 2023. As we gather here today, we are reminded of the universal teachings of the Lord Buddha and the significance of his Dhamma that foster wisdom, well-being, and the world peace with compassion. I find myself fortunate to have been associated with the IBC since its inception. I have been seeing the IBC growing and promoting the
Buddha legacy as an umbrella body both in India and at the world at large. The support from the Mahasangha world over and the supreme patriarchs, Sangha Nayaks, meditation masters, various Buddhist associations, monastic bodies, learned Buddhist scholars have brought us to this historic day when we are all witnessing this auspicious day happening. It is very appropriate to see the theme of this Global Buddhist Summit, responses to the contemporary challenges, philosophy to the praxis, and that the summit is divided into two separate parallel sessions, a Sangha session and an academic session with diverse sub-themes such as Buddha, Dhamma and peace, environmental crisis, health and sustainability, preservation of Nalanda Buddhist tradition, Buddha Dhamma pilgrimage, living heritage and Buddha relics, etc. We know that the Buddha Dhamma is not just a religion, it is a way of life that emphasizes compassion towards all beings. It is also addressing the most pressing issues facing our world today, and that is the well-being of the people. The Dhamma has much to teach us about the way as to how to live in peace, happiness, and harmony within the natural world. The teachings of impermanence and interdependence remind us that everything in this world is changing and are interconnected, and that our actions have consequences not only on us, but the world outside. We must learn to live in a way that is sustainable and respectful of the earth and its resources. First of all, I would like to acknowledge, and it's very heartwarming to see that so many dignitaries across the globe are here. And in the august presence of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we are witnessing this historic event. And it is also very heartwarming to acknowledge that Government of India, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, has taken several steps for the promotion and preservation of Buddhist culture in the country. From 2014, the Government of India has taken a lead role in all the events related to Buddhism and also associated with Lord Buddha. All the important events are celebrated across the country where we see very active role played by the state. For the first time, Honorable Prime Minister himself takes the lead role in all the major events, particularly the Vesak Buddha Purnima, where Honorable Prime Minister himself makes his presence by taking a lead role not only in India, but in the neighboring countries also. For the first time, I can proudly say that India, as a birthplace of Lord Buddha, is doing its duty. By calling this Global Buddhist Summit, India is really taking the lead role in honoring not only the teaching of Lord Buddha, but showing a lead role and a way forward for the global community. I'm confident that the benign presence of all of you will certainly provide us with a platform to discuss and exchange ideas and to strengthen our commitment towards the Buddha, Buddha Dhamma, and its significance to the global community. Before I conclude, I congratulate all the members of the International Buddhist Confederation who have come from all over the world to attend this great historical summit and to make it successful. May the pure Dhamma endure for a long time. May the pure Dhamma be venerated. Bhavatu Sabba Mangalam. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Sri Kiran Rijiju ji has been associated with IBC since its inception. As we all know, 4 holy relics of Lord Buddha were taken to Mongolia as part of their Buddha Purnima celebration last year. The Honorable Minister had led that historic delegation with a message of peace and harmony from India. Ladies and gentlemen, we shall now have a prolific vocalist to take us on an odyssey of soulful Hindustani classical music. She is Dr. Subhadra Desai,
a professor of Hindustani music at the University of Silicon, Andhra, California. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Sri Kiran Rijiju ji has been associated with IBC since its inception. सुनन्तु भासितं तस्माहि भूता निसामेथ सब्बे मित्तं करोथ मानुष्यापजाय दिवाचरतो च हरन्ति ये बलिं तस्माहि निरक्षत अपमता यकिंचिवित्तं इधाहुर्वा सज्ञे सुवायं रतनं पणितं ननो समंगति तथा रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्तिर्होतु क्षयं विरागम् अमदं पणितं यदा जगासत्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समर्थिके चिदिदं धम्मे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्तिर्होतु यं बुद्धसिद्धो परिवर्णयि शुचिं समाधिमानन्तरिकन्यामाहु समाधिना तेन समो न विज्जति इदं पिदं मे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्तिर्होतु ये पुग्गला 800 पसथा चत्तारि एतानि युगानि हन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य तावका एते सुदिन्नानि महफलानि इदंपि संगे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्तिर्होतु ये सुपयुक्ता मनसा दृढेन निक्कामिनो गोतमशासनं ते पत्तिपत्ता अमतं विगय लब्धा बुधा निभृतिं भुञ्जमान इदंपि संघे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्तिर्होतु यथिन्दखिलो पठविंसितोऽस्या चतुर्भिवाते हि असम्पकं पियो
तथूपमं सत्पुरुषं वदामि यो वर्यसच्चानि अवेच पश्यति इदमपि संज्ञे रतनं पणितम् एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्होतु ये अर्यसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपण्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते होन्ति भुसप्पमता न ते भवङ्गठमङ्गादियन्ति इदमपि संज्ञे रतनं पणितम् एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्होतु वरो वरन्यो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरङ्गदेशयि इदमपि बुद्धे रतनं पणितम् एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्होतु क्षीणं पुराणं नवं नक्तिसम्भवं विरक्तचित्ता आयतिके भवस्मिन् ते क्षीणबीजा अवरुह्यछिन्ना निभ्रन्ति धीरा यथायं पदीपो इदमपि संज्ञे रतनं पणितम् एतेन सच्चेन सुबुद्धिर्होतु यानि धभूतानि समागतानि भूमानि वायानि व अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्साम सुबुद्धिर्होतु यानि धभूतानि समागतानि भूमानि वायानि व अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्साम सुबुद्धिर्होतु यानि धभूतानि समागतानि भूमानि यायानि व अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं संඝं नमस्साम सुबुद्धिर्होतु This was a presentation on a Buddhist discourse in Sanskrit and Pali, extolling the characteristic of three Ratnas of the enlightened Buddha, the teaching Dhamma, and the noble community of disciples, Sangha. शास्त्रीय संगीत के माध्यम से बौद्ध धर्म के तीन रत्नों यानी बुद्ध, धम्मा और संघ को प्रतिबिंबित करती है प्रस्तुति. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will now be doing Jivardhan by offering holy robes to the eminent monks who have so graciously gathered here from 30 foreign countries. It makes this summit one of its kind, a historical one.
Jivardhan is one of the ancient tradition of Buddha Dhamma to seek blessings of the distinguished monks. सबसे पहले Venerable Shilabhadra Mahathero, Chief Abbot New Salvan Bihara, and President Sangaraj Jyotipal Mahathero, Buddhist Mahavira Foundation, Bangladesh. इसके बाद His Eminence Padma Acharya Karma Rangdol, Central Monastic Body of Bhutan. तत्पश्चात His Eminence Revered Khamba Lama Gapju Demberel, Head of Mongolian Buddhist and Patron IBC from Mongolia. Then we have Most Venerable Sayadaw Dr. Ashin Nyanisara, Chancellor, Sitago International Buddhist Academies, Myanmar. Please join your hands together. अभिवादन स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री, म्यांमार के बाद वेनरेबल भिक्षु धम्मा शोभन महाथेरो, प्रेसिडेंट ऑल नेपाल भिक्षु एसोसिएशन नेपाल. इसके पश्चात वेनरेबल जंगबम, डिप्टी डायरेक्टर द ओवरसीज स्पेशल हेडक्वार्टर्स ऑफ जोगे ऑर्डर ऑफ कोरियन बुद्धिज्म, साउथ कोरिया. Then we have the most venerable Vasaka Dube Mahinda Bansa Mahanayake, Dhero Mahanayake of Amarpura Mahanikai. Then we have His Holiness Thick Tree Kwang, followed by His Holiness 43rd Sakya Trijan Khontung. इसके पश्चात Most Venerable Thich Quang Ba, President IBC, Abbot Van Han Monastery, Australia. ऑस्ट्रेलिया से पधारे. Venerable Bhikkhu Nandisena, President IBC, Abbot Dhamma Vihara, Mexico. Then we have His Eminence Khamba Lama Dr. Dambajab Choi Jiljab, Chief Abbot Zun Khuri, Mongolia. तत्पश्चात Venerable Pomnyun Sunim, Chairman of Jangto Society and Founder Guiding Dharma Master Jangto Society, South Korea. We have Most Venerable Vien Min, His Eminence Kyabje Yongzin from India, Venerable 20th Bakula Rinpoche Stenzin Zikmit Bangshuk from India. Then we have His Eminence Kundeling Taksak Rinpoche Tenjin from India. असीम श्रद्धा भाव के साथ जीवदान की प्राचीन परंपरा के माध्यम से श्रद्धेय बौद्ध भिक्षुओं को नमन कर उनके आशीर्वाद से अनुग्रहित माननीय प्रधानमंत्री जी अब मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे. महात्मा बुद्ध ही नहीं बल्कि अन्य अनेकों समाज सुधारकों, संत महात्माओं के साथ साथ हमारे सनातन संस्कारों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी की अडिग आस्था, संपूर्ण समर्पण पूरी मानव जाति के लिए एक प्रेरणा है. एक ऐसी प्रेरणा जिसमें समय और सीमाओं की परिधि से परे सर्वे संतु निरामया का दिव्य संदेश निहित है. विश्व कल्याण के उन आदर्शों को गुंजित करते, करुणा प्रेम का संदेश देते महान धर्मावलंबियों की, विद्वानों की उपस्थिति से सराबोर आज का ये समागम. मान्यवर, याद आता है 14 जून 2022 का दिन, संत शिरोमणि तुकाराम जी के जन्म एवं कर्मस्थली महाराष्ट्र का देहू गांव, महान समाज सुधारक तुकाराम जी की इस पावन धरती पर एक धर्मस्थल के उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शास्त्रों का वर्णन करते हुए कहा था, मनुष्य जीवन में सबसे दुर्लभ संतों का सत्संग है. अगर संतों की कृपा हो गई तो समझो ईश्वर की कृपा हो गई. हमारा सौभाग्य मान्यवर कि आज हम सभी इन विलक्षण पलों के भागीदार हैं और अब समय
उस ओजस्वी उद्बोधन का जिसका हम सबको इंतजार है। May now request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for the keynote address. माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह कि वो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 को संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। नमो बुद्धाय। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीमान किरण रिजिजू जी किशन रेड्डी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल, देश विदेश से यहाँ पधारे और हमारे साथ जुड़े हुए सभी पूज्य भिक्षुगण, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के इस पहले आयोजन में आप सभी दुनिया के कोने कोने से आए हैं। बुद्ध की इस धरती की परंपरा है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है, क्योंकि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। ये सोच शाश्वत है, ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज जितने इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है, यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा। और इसलिए मुझे विश्वास है पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इस दिशा में हम सभी देशों के प्रयासों के लिए एक प्रभावी मंच का निर्माण करेगी। मैं इस आयोजन के लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, इस समिट से मेरे आत्मीय लगाव की एक और वजह है। मेरा जन्म गुजरात के जिस वडनगर स्थान में हुआ है, उस स्थान का
बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। वडनगर से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कभी बौद्ध यात्री हुयेन संघ ने भी वडनगर का दौरा किया था और यहां पर मैंने जब प्रदर्शनी देखी, एक्सकेवेशन में जो चीजें लगी हैं, बहुत सारी चीजें विस्तार से यहां रखी हुई है। और संयोग देखिए कि जन्म मेरा वडनगर में हुआ और काशी का मैं सांसद हूं और वहीं सारनाथ भी स्थित है। साथियों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की मेजबानी का एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। साथियों, आप सभी परिचित हैं कि बुद्ध का मार्ग है परियक्ति, पटिपत्ति और पटिवेद, यानी थियोरी, प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन। पिछले 9 वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो, सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लुम्बिनी में भारत और आईबीसी के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो, भारत के ऐसे हर काम में पट्टी की प्रेरणा शामिल है। ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतिवेद ही है कि भारत विश्व के हर मानव के दुख को अपना दुख समझता है। दुनिया के अलग अलग देशों में पीस मिशंस हो या तुर्की के भूकंप जैसी आपदा हो, भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है, मम भाव से खड़ा होता है। आज भारत के 140 करोड़ लोगों की इस भावना को दुनिया देख रही है, समझ रही है और स्वीकार भी कर रही है। और मैं मानता हूं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का ये मंच इस भावना को नया विस्तार दे रहा है। ये हम सभी लाइक माइंडेड एंड लाइक हार्टेड देशों को एक परिवार के रूप में बुद्ध धम्म और शांति के विस्तार के नए अवसर देगा। वर्तमान चुनौतियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, इस पर चर्चा अपने आप में न केवल प्रासंगिक है बल्कि
विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है। हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है। बुद्ध ने महल इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्हें कोई कष्ट था। बुद्ध ने महल, राजसी ठाट बाट उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके लिए उपलब्ध सब सुख सुविधाओं के बाद भी दूसरों के जीवन में दुख था। यदि हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्व से निकलकर संसार, संकुचित सोच को त्याग कर समग्रता का ये बुद्ध मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। हमें हमारे आसपास गरीबी से जूझ रहे लोगों के बारे में सोचना ही होगा। हमें संसाधनों के अभाव में फंसे देशों के बारे में सोचना ही रहेगा। एक बेहतर और स्थिर विश्व की स्थापना के लिए यही एक मार्ग है, यही आवश्यक है। आज ये समय की मांग है कि हर व्यक्ति की, हर राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी हो, ग्लोबल वर्ल्ड इंटरेस्ट भी हो। साथियों, ये बात सर्वस्वीकार्य है कि आज का ये समय इस सदी का सबसे चैलेंजिंग समय है। आज एक और महीनों से दो देशों में युद्ध चल रहा है, तो वहीं दुनिया आर्थिक अस्थिरता से भी गुजर रही है। आतंकवाद और मजहबी उन्माद जैसे खतरे मानवता की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती पूरी मानवता के अस्तित्व पर आफत बनकर मंडरा रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इकोलॉजी नष्ट हो रही है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। लेकिन इस सब के बीच हमारे आप जैसे करोड़ों लोग भी हैं जिन्हें बुद्ध में आस्था है, जीव मात्र के कल्याण में विश्वास है। ये उम्मीद, ये विश्वास ही इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है। जब ये उम्मीद एकजुट होगी तो बुद्ध का धम्म विश्व की धारणा बन जाएगा। बुद्ध का बोध मानवता का विश्वास बन जाएगा। साथियों, आधुनिक विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सैकड़ों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ हो। आज दुनिया जिस युद्ध और अशांति से पीड़ित है, बुद्ध ने सदियों पहले इसका समाधान दिया था। बुद्ध ने कहा था, जयन वेरन पसवती, जयन वेरन पसवती, दुखन सेति पराजितो, उपसंतो सुखन्न सेति, हित्व जय पराजय। अर्थात जीत वैर को जन्म देती है और हारा हुआ व्यक्ति भी दुख की नींद सोता है। इसलिए हार जीत, लड़ाई झगड़ा इन्हें छोड़कर ही हम सुखी हो सकते हैं।
भगवान बुद्ध से ने युद्ध से उबरने का रास्ता भी बताया है। भगवान बुद्ध ने कहा है, नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्ति उदाचन अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। अर्थात वैसे बहुत बड़े कम शब्दों में बात बताई है, वैर से वैर शांत नहीं होता है, वैर अवैर से शांत होता है। भगवान बुद्ध का वचन है, सुखा संज्ञस्य सामग्री समज्ञानम तपो सुखम। अर्थात संगों के बीच एकता में ही सुख समाहित है। सभी लोगों के साथ मिलजुल करके रहने में ही सुख है। साथियों, हम देखते हैं आज अपने विचारों, अपनी आस्था को दूसरों पर थोपने की सोच दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन रही है। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था, अत्तानमेव पठनम, अत्तानमेव पठमन, पति रूपे निवेशये। यानी कि पहले खुद सही आचरण करना चाहिए, फिर दूसरे को उपदेश देना चाहिए। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि चाहे गांधी जी हो या फिर विश्व के अनेक लीडर्स, उन्होंने इसी सूत्र से प्रेरणा पाई। लेकिन हमें याद रखना है, बुद्ध सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा था, अपदीपो भव। यानी ये जो आगे का वाक्य है वही तो सबसे बड़ा आधार है, अपदीपो भव। यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। आज अनेकों सवालों का उत्तर भगवान बुद्ध के इस उपदेश में ही समाहित है। इसलिए कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र में मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। जहां बुद्ध की करुणा हो वहां संघर्ष नहीं, समन्वय होता है। अशांति नहीं, शांति होती है। साथियों, बुद्ध का मार्ग भविष्य का मार्ग है, सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है। अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। ये संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में एक देशों ने और कुछ देशों ने दूसरों के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। दशकों तक वो ये सोचते रहे कि प्रकृति से इस छेड़छाड़ का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आएगा। वो देश इसे दूसरों के ऊपर ही डालते रहे। लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म पद में स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही लगातार की हुई गलतियां विनाश का कारण बन जाती है। मानवता को इस तरह सतर्क करने के बाद बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर हम गलतियों को सुधारें, लगातार अच्छे काम करें, तो समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं। माव मय्येथ पुण्यस, माव मय्येथ पुण्यस
न मन तन आग मिस्तति उद बिंदु निपाते न उद कुंभोपि पुरति धीरो पुरति पुण्यस थोकम थोकमपि आचिनन। अर्थात किसी कर्म का फल मेरे पास नहीं आएगा, ये सोचकर पुण्य कर्म की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ धीर व्यक्ति पुण्य से भर जाता है। साथियों, हर व्यक्ति का हर काम किसी न किसी रूप में धरती को प्रभावित कर रहा है। हमारी लाइफस्टाइल है, चाहे जो हो, हम जो भी पहनते हो, हम जो भी खाते हो, हम जिस भी साधन से यात्रा करते हो, हर बात का प्रभाव होता ही होता है, फर्क पड़ता ही पड़ता है। हर व्यक्ति जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ भी सकता है। अगर लोग जागरूक होकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करें तो इस बड़ी समस्या से भी निपटा जा सकता है। और यही तो बुद्ध का मार्ग है। इसी भावना को लेकर भारत ने मिशन लाइफ की शुरुआत की है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये मिशन भी बुद्ध की प्रेरणाओं से प्रभावित है, बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाता है। साथियों, आज बहुत आवश्यक है कि विश्व कोरी भौतिकता और स्वार्थ की परिभाषाओं से निकलकर भवतु सब मंगलम, इस भाव को आत्मसात करे। बुद्ध को केवल प्रतीक नहीं बल्कि प्रतिबिंब भी बनाया जाए, तभी भवतु सब मंगलम का संकल्प चरितार्थ होगा। इसलिए हमें बुद्ध के वचन को याद रखना है। मां निवत्त अभिक्कम, यानी डू नॉट टर्न बैक, गो फॉरवर्ड। हमें आगे बढ़ना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर हमारे निमंत्रण पर यहां पधारने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। और इस 2 दिवसीय विचार विमर्श से मानवता को नया प्रकाश मिलेगा।